علامہ طالب جوہری کی نماز جنازہ انچولی میں خیر الامر مسجد کے گراؤنڈ میں بعض نماز ظہر ادا کی جائے گی۔ خطیب شامی غریباں کی تدفین نیو رضویہ سوسائٹی علامہ طالب جوہری لائبریری کے احاطے میں کی جائے گی۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، دانیال سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دانیال، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، معروف عالم دین مذہبی اسکالر علامہ طالب جوہری کی نمازی جنازہ اب سے کچھ دیر بعد فیڈرل بی ایریا بلاک 20 مسجد و امام بارگاہ شہدائے کربلا انچولی میں ادا کی جائے گی، اور نماز جنازہ امام بارگاہ شہدائے کربلا انچولی سے متصل جو گراؤنڈ ہے ہمروہ گراؤنڈ، اس میں ادا کی جائے گی، جس کے لیے تمام تر انتظامات کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ گرمی کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے جو شرکاء آئیں گے ان کے لیے ٹینٹ اور شامیانے جو ہے وہ لگا دیے گئے ہیں۔ پولیس اور رینجرز کی نفری کو اضافی طور پر یہاں تعینات کیا گیا ہے۔ تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ نماز ظہرین تقریباً مسجد و امام بارگاہ شہدائے کربلا میں 1:15 بجے سپہر ادا کی جائے گی، اور نماز ظہرین کے بعد پھر نماز جنازہ علامہ طالب جوہری صاحب کی امروہہ گراؤنڈ بلاک 20 فیڈرل بی ایریا میں ادا کی جائے گی، جس کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، جبکہ اہل خانہ کے مطابق تدفین کا جو مقام ہے اسے تبدیل کیا گیا ہے۔ وادی حسین کے بجائے اب علامہ طالب جوہری کی جو تدفین ہے وہ نیو رضویہ سوسائٹی میں علامہ طالب جوہری کے مدرسے اور لائبریری کے احاطے میں ان کی تدفین کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے دانیال، بہت شکریہ آپ کا۔ سیاسی منظرنامے سے خبر شامل کریں۔ وفاقی حکومت کی اتحادی جمہوری وطن پارٹی نے وفاقی حکومت کو 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ سینٹرل کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 1 ہفتے میں معاہدے پر عمل درآمد کیا جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اتحاد ختم ہو جائے گا۔ شاہ زین بگٹی نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے ایک بھی وعدہ وفا نہیں کیا۔ اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، وفاقی حکومت کی اتحادی جمہوری وطن پارٹی نے وفاقی حکومت کو 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ سینٹرل کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 1 ہفتے میں معاہدے پر عمل درآمد کیا جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اتحاد ختم ہو جائے گا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، پارا چنار کے مزدور چوک میں زوردار دھماکہ ہوا ہے، جس میں 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال بھی منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پارا چنار کے مزدور چوک میں زوردار دھماکہ ہوا ہے، جس میں 2 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پارا چنار دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے دھماکہ ہوا ہے۔ صبح انفارمیشن ملی ہے کہ آواز سنی گئی ہے، پوری پولیس اور ہماری آرم فورسز ادھر پہنچی۔ یہاں پر امپیکٹ اس کا کوئی نظر نہیں آ رہا، اور نہ کوئی بندہ زخمی، اس میں کوئی کیجولٹیز نہیں ہوئی۔ تب بھی ہم نے اپنی بی ٹی ٹیم منگوائی ہوئی ہے اور اس کو اسٹینڈ کر رہے ہیں کہ ایکچوئل اس میں سچویشن کیا ہے۔ جو ہی ہمارے سامنے کوئی شواہد آتے ہیں تو ہم میڈیا کے ساتھ مزید شیئر کریں۔ پی آئی اے طیارہ حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ تیار۔ وفاقی وزیر غلام سرور تحقیقاتی رپورٹ آج وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں پیش کریں گے۔ ایئر کمانڈر عثمان غنی رپورٹ پہلے ایویشن ڈویژن کو پیش کریں گے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پی آئی اے طیارہ حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لی گئی ہے۔ وفاقی وزیر غلام سرور تحقیقاتی رپورٹ آج وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں پیش کریں گے۔ ایئر کمانڈر عثمان غنی رپورٹ پہلے ایویشن ڈویژن کو پیش کریں گے۔ پی ایس پی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال بانی ایم کیو ایم پر برس پڑے، کہتے ہیں ثابت ہو گیا متحدہ بانی ہی ڈاکٹر عمران فاروق کا قاتل ہے۔ متحدہ بانی نے نوجوانوں کو را کا ایجنٹ بنایا، وہ ہماری نسلوں کا قاتل ہے۔ اس نوسر باز کو صرف لوگوں کا خون چاہیے۔ عمران فاروق کو مروا دیا اس آدمی نے، ہم اس کو کونڈیم کرتے ہیں، یہ را کا ایجنٹ ہے۔ سندھو دیش کا پہلے وہ بابائے مہاجر قوم تھا، اب وہ بابائے سندھو دیش ہو گیا ہے۔ اس نوسر باز کو ہر صورت میں لوگوں کا خون چاہیے، اور خون اس لیے چاہیے کہ انڈیا اس کے پیسے دیتا ہے اس کو۔ ہم نے کبھی ایم کیو ایم پاکستان کی شکل میں، کبھی پی ٹی آئی کی شکل میں ہم نے شہر کو گروی رکھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے دہشت گرد اور اس کو چلانے والوں کو سانس مل رہی ہے، ان کو وجوہات مل رہی ہیں، ان کو شیلٹر مل رہا ہے، ان کو جواز مل رہا ہے کہ چند لڑکے ان کی طرف ان محرومیوں کو دیکھ کر ان کی طرف ہوں۔
आपको बताएं कौमी क्रिकेट टीम के 5 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट रावलपिंडी में कर लिए गए हैं। कौमी टीम के खिलाड़ियों की कोरोना टेस्टिंग के लिए 4 शहरों में इंतजाम किए गए हैं। तमाम खिलाड़ियों की कोरोना टेस्ट आज किए जाएंगे। दौरा इंग्लैंड है, उससे पहले कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। 29 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है और दौरा इंग्लैंड के लिए पहले टेस्ट होंगे, उसके बाद रवाना होंगे। कौमी क्रिकेट टीम के 5 खिलाड़ियों के टेस्ट रावलपिंडी में किए गए हैं। दूसरी जानिब कराची में भी कौमी क्रिकेट टीम के 7 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट हो गए। आपको बताएं कि कराची में भी जो खिलाड़ी रिहाइश पजीर हैं, 7 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके कोरोना टेस्ट कर लिए गए हैं। रावलपिंडी में 5 और कराची में 7 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट कर लिए गए। तो आपको बता रहे हैं कराची में भी कौमी क्रिकेट टीम के 7 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट हो गए हैं। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि कराची में भी कौमी क्रिकेट टीम के 7 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट हो गए हैं। असद शफीक, सुहेल खान, सरफराज अहमद, शान मसूद, मोहम्मद हसनैन, काशिफ भट्टी और फवाद आलम इन खिलाड़ियों में शामिल हैं। मुल्क में कोरोना की तबाहकारियां जारी हैं। 24 घंटे में मजीद 89 अफराद जान से गए। मरने वालों की तादाद 3590 हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 4471 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि कोरोना केसेस की तादाद 1,81,088 हो गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं आम खबर से। मुल्क में कोरोना की तबाहकारियां जारी हैं। 24 घंटे में मजीद 89 अफराद जान से चले गए। कि वफाकी पुलिस का मुबैना तौर पर मुल्जिमान की पुश्त पनाही का इंकशाफ हुआ। वफाकी पुलिस के एहलकार ने इल्जाम लगाया कि पुलिस के अफसरान मुल्जिमान से मिली भगत करके उनके हक में रिपोर्ट देते हैं। एहलकार का कहना है कि कई सालों से ऑपरेटर और रीडर माफिया की लॉबी वफाकी पुलिस पर असरअंदाज हो रही है। 3.5 साल से एक ऐसे लॉबी को, एक ऐसे ग्रोह को बेनकाब करने की कोशिश करवा रहे हैं जिनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनकी बहुत ज़्यादा होल्ड है। इस सिलसिले में मैंने इस्लामाबाद पुलिस, जहाँ पे इस्लामाबाद की पुलिस की बात हो रही है, तो इसका ये मतलब नहीं कि सारे पुलिस, जब अदलिया की बात हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि सारा अदलिया, और जब वकला की बात हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि सारे वकला साहिबान। बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं, बहुत नाइस लोग मौजूद है हर डिपार्टमेंट में, हर महकमे में और हर जगह पे। लेकिन काले करतूत वाले भेड़िए, उनकी तो कहीं भी जो है ना नसीबत की जाती है, ना उनको माफ किया जाएगा। इसी बात करते हैं सदाम मांगट हमारे साथ मौजूद हैं। सदाम, बताइएगा, पुलिस एहलकार के मुताबिक कुछ पुलिस अफसरान ऐसे हैं जो कि मुल्जिमान की पुश्त पनाही करते हैं। सर बिल्कुल, इसमें जो पुलिस एहलकार की जानिब से इल्जाम लगाया गया है उसमें वाज़ह तौर पर यह कहा गया है कि जो कई सालों से एक ही सीट पर तैनात अफसरान के जो रीडर और ऑपरेटर साहिबान हैं, वो सीनियर अफसरान के नाम पर जो पुलिस के जो तफ्तीशी अफसरान हैं उन पर दबाव डालकर तफ्तीश पर जो है वो मुतासर होते हैं, जबकि गुज़श्ता कई सालों से ऑपरेटर और रीडर माफिया की लॉबी जो है वो वफाकी पुलिस पर असरअंदाज हो रही है। ये पुलिस एहलकार की जानिब से इल्जाम लगाए गए हैं और ये भी कहा गया है कि वफाकी पुलिस के अफसरान मुल्ज़मान से मिली भगत करके इनके हक में रिपोर्ट्स जो है वो बनाते हैं और जमीनों पर कब्जे करवाने में भी यही रीडर माफिया जो है वो मुलव्वस है। इस्लामाबाद पुलिस का ताम पुलिस एहलकार की जानिब से ये भी दावा किया गया है कि अगर जो रीडर माफिया, जो ऑपरेटर साहिबान कई सालों से एक ही सीट पर तैनात हैं, अगर इनके असासाजात की तफसीलात इकट्ठी की जाए तो करप्शन का एक बड़ा जो है वो इल्जाम सामने आ जाएंगे। जी सदाम मांगट, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद शहर में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की बिला तअत्तुल फराहमी मुमकिन न हो सकी। मुतल्लिका कंपनीज की जानिब से अदम फराहमी पर पेट्रोल की तरसील बंद है। शहरी मुसलसल परेशानी में मुब्तला है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। जी रमज़ान, बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद में अभी भी 7 लगभग निजी कंपनीज हैं जिनके पेट्रोल पंप्स के ऊपर पेट्रोल मुयसर नहीं। ताहम पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO पे लिमिटेड क्वांटिटी में जो पेट्रोल है वो मिल रहा है। जो निजी कंपनीज हैं उन पर या तो 1 दिन का वक्फा होता है या 2 दिन का वक्फा होता है और वहाँ पर भी आने वाले शहरियों को, मुसाफिरों को लिमिटेड पेट्रोल जो है वो दिया जाता है, जिस वजह से
फैसल आबादियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन कंपनीज़ के आलमोस्ट 100 से ज़ायद यहाँ पर साइट्स मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस मामले को संजीदगी से नहीं देखा जा रहा, जिस वजह से बहुत सारी ऐसी जगहें जहाँ पर पेट्रोल फराहम किया भी जाता है लेकिन शहरियों को नहीं दिया जाता। शहरी जो हैं वो एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे पेट्रोल पंप की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस मामले के ऊपर अदम संजीदगी का जो है इजहार किया जा रहा है, जिस वजह से शहरी खासे परेशान हैं। जी रमज़ान, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। जबकि रावलपिंडी में चीनी नायाब हो गई है, रावलपिंडी में चीनी दस्तयाब नहीं, जबकि आटा महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। तो आपको बता रहे हैं कि रावलपिंडी में चीनी जो है वो नायाब हो गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं सरदार सदाकत से। जी सरदार सदाकत, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी शहर में चीनी और आटा दोनों गायब हो चुके हैं, चूँकि दोनों चीज़ें जो वो महंगी हो चुकी हैं। चीनी का रेट 70 रुपये सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था, लेकिन चीनी भी ओपन मार्केट में 85 रुपये किलो, जबकि आटा भी महंगा मिल रहा था। लेकिन आज जो है दोनों चीज़ें मार्केट से गायब हैं। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। आटा चीनी बिल्कुल शार्ट है, दोनों चीज़ें। चीनी तो मिल नहीं रही, इसीलिए बेच ही नहीं रहे। कहते थे 70 रुपये मिल नहीं रहे, कैसे बेचें हम? आटा भी शार्ट है, हर गाहक तराज करता है, आटा मिलता ही नहीं है पीछे से, फिर क्या करें आप? दुकानदार हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, इनका कहना है कि आटा और चीनी दोनों पीछे से महंगा मिल रहे हैं तो सस्ते बेच नहीं सकते। इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं शफीक कुरैशी, जो कि नॉन वेज एसोसिएशन के मरकज़ी सदर हैं। इनसे पूछते हैं। आटा तो मिल ही नहीं रहा, अगर कहीं से जाके मिल से उठाते हैं तो ब्लैक में उनकी मनमानी के रेटों पर, यानी 1250-1300 रुपये में 20 kg का तोड़ा मिल रहा है। पहले है ही नहीं है, मार्केट का आपने सर्वे कर लिया, देख लिया है। तो हम तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज जा रहे हैं लियाकत बाग के बाहर एहतजाजी मुज़ाहरा करेंगे जी। अगर ये मुज़ाहरे के बाद भी हमारे मामलात हल नहीं होते तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगला हाल ने चीनी नहीं दी जी। 70 में कहाँ से बेचें हम? 78 रुपये खरीद के 70 में बेचें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की सूरत हाल भी रावलपिंडी से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे का हसूल, शहरी परेशान है और चीनी का रेट यूटिलिटी स्टोर्स पर कम हुआ तो चीनी मिलना भी मुश्किल हो गई, बता रहे हैं शराज भट्ट। जी शराज। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से बात की जाए तो फैसलाबाद के 100 से ज़ायद यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर इस वक्त आटा जो है वो शॉर्ट हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। साथ ही साथ चीनी के हवाले से बात की जाए तो चीनी की शॉर्टेज की वजह से भी शहरियों को जो है वो परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। चीनी ख़ास तौर पर जो उसके रेट्स की वजह से जो कन्फ्यूजन थी, इस वक्त ओपन मार्केट के हवाले से बात की जाए तो ओपन मार्केट में 80 रुपये 85 रुपये फ़ी किलो में चीनी जो है फ़रोख्त की जा रही है। जबकि अगर यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से ख़ास तौर पर बात की जाए तो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर हुकूमत की जानिब से 68 रुपये चीनी की जो है वो रेट, उसकी प्राइस जो है वो तय की गई है, जिसके बाद से लेकर अब तक जो है चीनी का हसूल भी मुश्किल हो चुका है। फैसलाबाद के मुतादिद स्टोर्स के ऊपर चीनी मौजूद नहीं है, शहरियों को बड़ी परेशानी का सामना है। चीनी के हवाले से बात करेंगे, आटे के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी बहुत शॉर्ट है, कहीं भी नहीं मिल रही, ना बाहर मिल रही है ना यहाँ मिल रही है। आज हम घर से निकला हूँ टाइम पे, मैं क्या चीनी ले लूँ, यहाँ पे कहीं अवेलेबल नहीं है। कितने स्टोर आपने फिर? मैंने 3 स्टोर पता कर लिया, वहाँ भी नहीं है, और सिटी मेगा मार्ट पता किया, वहाँ नहीं है। मैं यार आया तब्दीली सरकार को कहो को मेहरबानी करे, गरीब लोग मर गए जेड़े भुखे। ठीक है, गरीब आवाम जो है, मुतवसत तबका इसमें बराह रास्त जो है वो सफ़र कर रहा है और चीनी और आटे के हसूल में जो मुश्किलात का सामना है उससे बहुत शुक्रिया आपका। गुजरांवाला में आटा माफिया ने इंतजामिया की रेट लिस्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। 20 किलो आटे का थैला 805 रुपये की बजाय 1050 से 1100 रुपये में फरोख्त होने लगा। तफसीलात जानते हैं जाहिद इकबाल राना से। जी जाहिद। हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला में आटे की कीमतें आके थमने का नाम नहीं ले रही। हर हफ्ते आटे की कीमतों में इजाफे की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 20 किलो आटे का थैला जो कि 805 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, अब गुजरांवाला की ओपन मार्केट में 1050 से लेकर 1100 रुपये के दरमियान वही 20 किलो आटे का थैला फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ हालिया चंद रोज़ में 20 किलो आटे के थैले की जो कीमत है उसमें 250 रुपये से 300 रुपये तक का इजाफा गया, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और अभी भी हम गुजरांवाला के सबसे बड़े जो मार्केट है किराना के हवाले से दाल बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर मुतअद्दिद ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर आटा तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर सरकारी जो रेट लिस्ट है उस पर भी कीमत 805 रुपये दर्ज है, लेकिन ओपन मार्केट में जो 20 किलो आटे का थैला है वो 1050 से लेकर 1100 के दरमियान फ़रोख्त हो रहा है। गुजरांवाला के जो आवाम, उनका कहना था एक तरफ हुकूमत की तरफ से गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन गुजरांवाला की अपडेट करने के लिए
ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، سندھ اسمبلی کے باہر ناصر شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ہم کر رہے ہیں اور کے پی میں ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، تو اب ان کو کیوں وہ بری لگ رہی ہیں یہ چیزیں؟ تو یہ ان کا دوہرا معیار ہے. یہ NFC ایوارڈ کی آپ بات کر رہے ہیں 18ویں ترمیم کی، تو سندھ سے تعلق رکھنے والی جماعت GDA وہ وہاں پر موجود ہے، اتحادیہ وفاقی سرکار کی. یہاں عمران خان جب آتے ہیں 18ویں ترمیم کے خلاف بات کرتے ہیں، NFC نہیں دینے کی بات کرتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں ان کو ابھی بھی ادھر بیٹھنا چاہیے وفاق میں GDA؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں کہ کچھ وہ باتیں ہوتی ہیں جن پر پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی چاہیے. جو اپنے ملک کے لیے، اپنے صوبے کے لیے اہم ہو اس پر سب کو ساتھ ہونا چاہیے. جب یہ کووڈ-19 کا آیا تو چیئرمین بلاول صاحب نے کھلے دل سے پرائم منسٹر سے کہا تھا کہ آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، اس مشکل گھڑی میں ہم ساتھ ہیں. جب NFC کی بات ہو، جب 18 امینڈمنٹ کی بات ہو، تو ہمارے وہ جو الائیز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے وہ وہاں پہ بات نہیں کرتے. کہ الیکٹرک کی بات ہو، یہاں کے ارسا کی بات ہو، اس کے ممبرشپ کی بات ہو، یا کوئی بھی سندھ کا اہم ایشو ہو، ویسے تو باہر نکل کر یہ بڑی باتیں کرتے ہیں. وزیر اطلاعات سندھ سید ناصر حسین شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. مزید خبریں شامل کریں. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے لاہور میں لاک ڈاؤن مزید سخت کرنے کی ہدایت کر دی. شہر کے 8 بڑے علاقوں سمیت اندرون شہر والڈ سٹی کو بھی مکمل لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں راؤ دلشاد سے. جی راؤ دلشاد، اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل جی، سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کے تحت 8 مزید علاقوں میں سخت لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اب لاہور شہر کا گلبرگ 1، گلبرگ 2، گلبرگ 3 مکمل طور پر بند ہوں گے. اسی طرح سے پوش علاقوں میں ماڈل ٹاؤن، DHA کے تمام فیزز اور سیکٹرز کو مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے گا. گلشن راوی، فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن اور اندرون شہر والڈ سٹی کو مکمل بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. آپ یہ بتائیں کہ شہر کے 21 علاقوں کی 61 گلیاں اور بلاکس کو پہلے ہی بند کیا گیا تھا، لیکن اب مزید جو 8 علاقے ہیں وہ بند کرنے کا جو اصولی فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے. 3613 مریض رپورٹ ہونے پر مجوزہ علاقوں کو مکمل لاک ڈاؤن کرنے پر اصولی اتفاق ہو گیا ہے. مجوزہ علاقوں میں 96,229 گھر، 2,33,000 خاندان، جبکہ 10,69,000 آبادی کو لاک ڈاؤن کیا جائے گا. آپ کہ مکمل لاک ڈاؤن کے وقت کا تعین پنجاب کی کابینہ کمیٹی جو ہے وہ کرے گی. 8 بڑے علاقوں کو بند کر کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت پہرا جو ہے وہ دیا جائے گا، جس طرح سے SOPs کے، اور جبکہ SOPs پر عمل درآمد کرانے کے حوالے سے جی راؤ دلشاد، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. بلیٹن آپ نے ملاحظہ کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 24 نیوز HD.